Hi guys, I hope you can see me. So in this live stream, I'll talk about a few things that I have already talked about, the mock strategy, the mock the exam day strategy. Also, I couldn't find a completely accurate representation of what cat mocks would look like. So I would talk about few points, and I will display a few points using this mock test link that official cat has provided us. So now, clicking on this, I would come here. I'm sure you all have attempted the live mock. I'll attempt a real mock as well, but in this, I just wanted to talk a bit about some interesting things, some interesting features that you might not use or that others might not have used, which I actually sort of tried to use. So as soon as it opens, okay, so it is open. I'll quickly skip the okay. So for example, there is this question. Now, instead of reading, when the paper starts, instead of reading through questions, I would quickly click on the question paper. This is present in the corner side, so I will quickly click on the question paper. I'll see what is the status. First question is the VA question, then we have 2 to 5 RC questions. So what I would do is I would maybe I'll have a quick look in the passage, like which one of the following is true, or again, cuttlefish behavior demonstrate now, Alexandra Schnell's experiment. तो इन सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है? तो I would start from I would start reading a couple paragraphs, for example first two paragraphs maybe, and then move to the questions, right? तो मतलब टोटल 6 क्वेश्चन हैं जैसे सारसी में, सॉरी 4 क्वेश्चन है, फिर ये 2 वीए के क्वेश्चन हैं एंड सो ऑन. तो दिस इज हाउ आई नेविगेट द पेपर. ये क्वेश्चन पेपर वाला टैब खोलकर ही आई जनरली नेविगेट द पेपर. कई बार मैं पैसेज भी यहीं से पढ़ता हूँ क्वेश्चन पेपर वाला टैब खोल के. अगर मेरे को पूरा पैसेज और क्वेश्चन एक में ही देखने हैं तो ऐसे मतलब इसमें दिख जाते हैं, तो आई यूज दिस वेरी ऑफ्टन. So I would also ask you to use it very often, build a habit of using this. Yeah, I don't know. I don't think ये सील वगैरह के मतलब ऐसे जो मॉक्स हैं उनमें इजीली मिलता है, बट कैट के एग्जाम में ये चीज है. तो ट्राई करना, देखना तुम्हारे लिए कितना यूजफुल है. एक बार ये वाला एक्चुअली एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पेपर से एक बार थोड़ा बहुत हेल्प लेकर देना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे टाइम उसको पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क करने के लिए तुम्हें फिर से वापस जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या कहते हैं, एक कैट में जो डिफरेंट फीचर है जो स्पेसिफिकली वीआरसी में आप यूज कर सकते हो, उसकी बात है. तो अब क्विकली आई टॉक अबाउट की 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व एनी आरसी, ठीक है? और अभी जो मैं मॉक अटेम्प्ट करूंगा उसमें ऑप्टिमाइज करूंगा यार कि मैं ज्यादा से ज्यादा आरसी क्वेश्चंस कर पाऊँ एज अगेंस्ट की बाकी सेक्शंस के. So the first and the most important strategy, sorry, not most important, the first and most used strategy actually is ki I would read the paragraph entirely. I would go through each of the questions individually, solve each of the questions, mark something, or if in some question I need to come back, then I'll come back. I'll read the paragraph again. So you end up reading paragraphs, a couple of times. So a better strategy, or a faster strategy, not necessarily better, but a faster strategy with a bit less accuracy would be something where I'll read all the questions first using this question paper mode. I would read all the questions, and then once I've read all the questions, I would read the paragraph. Like if you want to read all the questions through this interface, it takes a bit of time, like 2 3 seconds of lag, and then you have to click. So there is that click fatigue also. So I would read question paper in if I have to read questions first, then I have to go to passage. Then I would use this question paper tab that CAT has provided us. This was second strategy, by the way. The third strategy is again, I would read the first or a couple of lines, then I would come to the a question, then I would read a couple of more lines, then I would come to the question. This is what I am going to use in the mock today. So chalo I'll quickly start the live mock. So don't expect too much from me because I've not given a mock in a long time. और मैं रिजल्ट बताऊंगा तुम लोगों को, बट जस्ट डोंट मेक फन और समथिंग. ओके, तो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. तो शुरू करते हैं यार. ठीक है.
Assuming it, therefore, as an established truth that the circumstance is of such a combination that might happen to be formed out of that or general confederacy would be subject to the official use of peace and war. It is not to the law of all nations, not entitled and concisely. ठीक है, तो बेसिकली पुराने टाइम की बात हो रही है जब कभी वॉर वॉर हुआ होगा, और कन्फेडरेसी वगैरह शब्द देख के मुझे लग रहा है यूएस की बात हो रही है, सिविल वॉर के टाइम की। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो स्टेट्स हमारी यूनियन में नहीं आएंगे वो क्या कहते हैं अपना खुद संभालें। अब क्या कहते हैं, ये पैराग्राफ बहुत छोटा है, तो क्या कहते हैं, आई थिंक इसमें 4 ही क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें मोटिव। ठीक है, मोटिव मतलब एक ओवरऑल क्या कहते हैं 4 हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में, तो ये मार्क करूंगा बाकी पैराग्राफ पढ़ने के बाद, बट ये लास्ट में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। व्हाई डज ऑथर गिव द एग्जांपल ऑफ यूरोपियन नेशंस, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। और अच्छा, वैलिड इन्फ्रेंस, यानी कि सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है जो एक्चुअली में यूरोपियन नेशंस का एग्जांपल पूछ रहा है। चलो ठीक है, पूरा पैसेज अब एक बार पढ़ लेते हैं। तो war between the states in the first period of their separate existence would be accompanied with much greater distress that than it commonly is in those countries where regulation have long obtained. The different armies always kept on foot on the continent of the art of that very very so what right places with which mutually obstructing Asian campaigns are wasted in reducing poverty frontier garrisons to gain admittance into enemy countries. Similar impediments operate every step to exhaust the strength and delay the progress of an invader. Formally invading army. Uh, taken and retaken of that. Does that decide nothing of retreat more than। ठीक है, तो बेसिकली वॉर वगैरह की बात हो रही है कि क्या कहते हैं, कुछ कुछ तो पहले क्या होता था, अभी क्या होता है। अभी छोटी फोर्सेस रोक लेते हैं, पहले बहुत बड़ी फोर्सेस चाहिए होती थी। यूरोप की भी कुछ कुछ बात हुई है कि वहाँ पे फोर्टिफिकेशन होता था, और वहाँ की आर्मीज के बारे में बात हो रही है। In this country, the scene would be altogether reversed. The jealousy of military establishments would postpone them as long as possible. The want of fortifications leaving the frontiers of one state open to another would facilitate inroads among the states would, with little difficulty over than their populous neighbors. Conquest should be as easy to command as doing, or therefore should be destructive and predatory. ठीक है, तो इसमें थर्ड पैराग्राफ में बात की है कि भाई वॉर जो है बहुत ही खराब चीज है और ये नहीं होना चाहिए। ज्यादा सिंप्लीफाई किया मैंने। This picture is not too highly wrought, though I confess it would not long remain just one safety from external most our director of national conduct in the ardent love of liberty will after a time give to be more safe that I'm willing to run the risk of being basically इसमें मिलिट्री के मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात किया गया है। तो लाइक आई थिंक ऊपर बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब किसी भी स्टेट की खुद की मिलिट्री नहीं है, और फिर इन्होंने बोला कि यूरोप में हर स्टेट की खुद की मिलिट्री है, खुद का फोर्टिफिकेशन है, तो इन्होंने उसके बारे में बात की है। ठीक है, अब बात आ जाती है यार क्वेश्चंस पे। मतलब पैसेज तो मैं पूरा समझ गया हूँ, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी द मोटिव ऑफ ऑथर बिहाइंड राइटिंग द पैसेज। ठीक है, तो मोटिव का पता आखिरी लाइन से ही चलता है। दे एट लेंथ विलिंग बिकम विलिंग टू रन द रिस्क ऑफ बीइंग लेस फ्री। ठीक है, तो सेफ होने के लिए ना वो लोग लेस फ्री होने के लिए रेडी हैं, यानी कि मिलिट्री रखने के लिए रेडी हैं। तो ये लास्ट स्टेटमेंट तो emphasize the fact that purpose of having a military is not but to prevent them। अच्छा। हम्म, ठीक है, तो military of its own since it could turn out to be।
ठीक है, आई थिंक फोर्स तो नहीं होगा। ठीक है कि द बेनिफिट्स आउटवे द कॉन ऑन द मिलिट्री साइड। ठीक है। पर ये तो थर्ड स्टेटमेंट काफी जेनरिक है, दी कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी टू प्लेजेंट। ठीक है, तो आई वुड से कि ए या बी में से ही कोई एक होना चाहिए। तो एक्सप्लेन दैट ईच स्टेट इन हिज कंट्री शुड हैव अ मिलिट्री, माइट बी, बी हो सकता है the fact that the purpose of having a military is not to fight wars but to prevent them। ठीक है, देखो मैं बी मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, बट अगर रियल एग्जाम होता है यार तो मैं मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन छोड़ देता। ठीक है, क्योंकि मुझे ए बी सी में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मतलब विद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आई थिंक कि बी होगा। बट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन टू। Four hypothetical statements are given, which the following statement can definitely be said to be false using the information the author is describing is a union of states. The country described by the author is located in Europe, ये definitely false है। ठीक है, बाकी तीनों के ट्रू होने के लिए each state in the country wants to have a separate military होना, या मतलब स्टेट के इंटेंशन की बात नहीं की गई है। तुम कह नहीं सकते कि सबको चाहिए या नहीं चाहिए, तो बी तो डेफिनेटली ट्रू है। What does the author, why does the author give the example of how the nature of war has changed over the years in the nation due to war? मतलब हाँ, ये तो इसने सेकंड पैराग्राफ में पूरा बताया ही है, बताया कि पहले क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैन एक्ट एज अ डिटरेंट टू वॉर। कंट्रीज इल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो डी तो नहीं होगा। ठीक है, as far as I can say, to explain how his country is ill prepared, मतलब उसने कहीं ऐसी बात तो की तो है यार, मतलब थोड़ा थोड़ा उसने कहीं कहीं तो बोला है कि ठीक है, टू इलस्ट्रेट हाउ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मैं तो ये क्वेश्चन ये मार्क करूंगा, मतलब लास्ट पैराग्राफ में ये काफी क्या कहते हैं हेविली बताया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी बताया गया है ऑफ मच एफर्ट एंड लिटिल एक्विजिशन। बट मैं फिर भी ए ही मार्क करूंगा यार, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है पैराग्राफ टू से है। फिर जनरली यार मैं जो पहला मेरा चॉइस होता है ना, मैं बार बार अपना चॉइस चेंज नहीं करता हूँ, जब एक बार मैंने मार्क कर दिया फिर मैं उससे आगे बढ़ जाता हूँ, सही हो चाहे गलत हो। Which of the following is not a valid inference that can be made on reading the passage? The author believes that need for safety would undermine the sense of nationalism. Author is of the view undermine, is not a valid reference. ठीक है, मतलब undermine the sense of not लिखा है, तो undermine the sense of nationalism कैसे करेगा? Author does not believe that the lack of military establishment should be a permanent feature, ये तो author believe करता है। The wars prior to the development of military in European nations were quick captures। इसकी वैसे बात तो नहीं की गई है, बट दिस माइट बी अ वैलिड like inference, but need for safety would give rise to military, and that is what author believes। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है। द कंट्री इज ऑफ द व्यू दैट प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री अंडरमाइंस द वैल्यू ऑफ लिबर्टी। यार देखो, मैंने पहले तो ए मार्क कर दिया था, और लास्ट क्वेश्चन मैंने बोल भी दिया था कि मैं जो मार्क कर देता हूँ वो चेंज नहीं करता, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है यार चेंज करना पड़ेगा। इज नॉट अ वैलिड रेफरेंस पूछे ना, मतलब कौन सा गलत है बेसिकली ऑथर के हिसाब से? कौन सा वैलिड है, तो रीजन।
चलो यार मैं आगे ही बढ़ जाता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने से फायदा नहीं है। तो एक बार नाइन्थ क्वेश्चन देखता हूँ। नाइन्थ और फिफ्थ डिफरेंट है, यानी कि ये भी 4 क्वेश्चन का ही आरसी है। चलो इसको भी फटाफट अटेम्प्ट करते हैं। Here is an undeniable but seldom stated fact. The quickest way to destroy terrorism as a tool would be to institute a news media policy of information blackout regarding terrorist attacks. The terrorist attack act itself is a few process, but it is actually the dissemination of information creates a state of mind. Of course, she would never implement such a, but it's worth noting that our collective addiction to information ऑफ फॉर प्रॉफिट मीडिया ना पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली मीडिया के रोल के बारे में मुझे लगता है कि बात हो रही है। तो एक बार मैं फिफ्थ क्वेश्चन देखता हूँ। मेन आर्गुमेंट पे बात हो रही है, यानी लास्ट में करना पड़ेगा। जिहादी जॉन के बारे में बात हो रही है, देखो तो ये देखते हैं कि कहाँ पे आता है। ठीक है, पेनल्टीमेट पैराग्राफ, चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैन नॉट बी इन्फर्ड, ठीक है। तो फिफ्थ और एट्थ क्वेश्चन हमें लास्ट में करना है, ठीक है। और जिहादी जॉन और क्या कहते हैं पेनल्टीमेट पैराग्राफ, ठीक है, याद रखना। There is actually one way in which we already tacitly recognize the role of media in creating and aiding terror in the wake of mass shootings, assassination attempts, and other kind of the media is sensitive to the role it plays in potentially spurring or seeing this since Colombian and perhaps even before. Yet I have never seen him said and annihilate all the way down to its core. Ask what if our social media is the medium which makes mass terrorism possible? Yeah. Media coverage the option that media does a terrorizing more than anything. When Jihadi John slits the throat in a country on the other side, how is his life and how is that totally different than thousands of young bullets on the daily basis? ठीक है, तो जिहादी जॉन का एग्जांपल यहाँ पे आया है ना, तो ये वाला क्वेश्चन यार फट से ट्रिक्स में हो हाई प्लेट में ये क्योंकि उसने बुलेट्स वगैरह की बात की, बट ट्रिक्स हाँ ठीक है। तो मैं सी मार कर रहा हूँ यार, क्योंकि his broader point is to show कि नॉट दैट वाइड स्प्रेड, ठीक है। बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग बुलेट्स और नाइफ से मरते हैं, ठीक है। बट मीडिया जो है डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम देती है। मीडिया मीडिया हालांकि ए भी हो सकता है इसका आंसर, टू एक्सप्लेन हाउ हाइप क्रिएटेड बाय मीडिया gives more attention to some attacks than others, ठीक है। but receives a disproportionate amount of ठीक है। तो शो दैट टेररिज्म इज, ठीक है, चलो मैं इसको मार्क करके नेक्स्ट बढ़ जाता हूँ। और एक बार अब हम आ गए हैं पेनल्टीमेंट पैराग्राफ पे। So our modern information dissemination structures themselves amplify the fact and weave it into the fabric of our national story. We have come to rely on this legacy mechanism of journalism and news reporting for making about the world. We have tacitly ceded control of narrative creation about our tribe from the past, from the priest over to the for-profit modern daughters. No, ये देखो लास्ट पैराग्राफ, मतलब इवन बिफोर रीडिंग ऑप्शन यही बता रहा है ना कि बेसिकली जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन स्ट्रक्चर्स, मतलब इंफॉर्मेशन बांटने के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो इतने पावरफुल और इतने अनरेगुलेटेड हैं कि उनका कोई भी आर्किटेक्चर नहीं है, और वो कभी भी फेल हो सकते हैं। फेल एज इन कि वो गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है, दिखाने लगे, हो सकता है कुछ और दिखाने लगे। और पहले मतलब प्रीस्ट इन्फॉर्मेशन सेंड करता था, अब बाकी लोग इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो इसका वो क्या है, तो इसका मॉडर्न डिस्क्रिमिनेशन दैट, ठीक है, प्रीवियस ईयर उसने बात तो की है, टू आर्ग्यू अगेंस्ट अलाउइंग मीडिया टू सेट ना, अभी तो उसने किसी चीज के लिए आर्ग्यू किया नहीं है। हाईलाइट द फैक्ट दैट मीडियाज नैरेटिव, हाँ ये मुझे लगता है सी काफी स्ट्रांग है, ठीक है। मीडियाज नैरेटिव सेटिंग एबिलिटी कैन बी इजीली हाईजैक्ड, ठीक है।
दैट अब लास्ट पैरा एक बार पढ़ लेते हैं. दैट vulnerability when exploited by charges it's standing in namely the fear of random acts but terrorism by definition is the creation of state of fear. Second one, ISIL doesn't operate on any nor does it configure it. No, charges will kill people, that is true, but our media environment creates and sustains the sense of terror. Peter Van. ठीक है, अब क्या इन्फर नहीं है समझो सा. ये कैसे इन्फर कर सकते कि नो वन, मतलब ये तो बहुत ही हार्ड हो गया. ठीक है, मतलब ऑथर ही क्या कहते हैं एक्नॉलेज कर रहे हैं. मीडिया टेक्स पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉपी, ये तो ऑथर ने कहा है. ठीक है, और मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि नहीं, क्या कहते हैं. ठीक है, ये क्या कहते हैं कभी नहीं हुआ है पैसेज में तो. फियर ऑफ टेररिज्म, हाँ ये तो सच है, मीडिया क्रिएट्स द फियर ऑफ टेररिज्म हेवीली पब्लिक. ठीक है, तो ये भी बहुत ही क्लैरिटी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन नहीं बचा है. ऑथर्स का मेन है सेल्फ सेंसर्स इटसेल्फ टू प्रोवाइड प्राइवेसी. ये मेन आर्गुमेंट नहीं है देखो ऑथर का. विक्टिम के बारे में शो करने हैं ऑथर का मेन आर्गुमेंट. हम कह सकते हो वैसे कि मेन आर्गुमेंट है, क्योंकि विक्टिम को देखकर उनकी फैमिली को देखकर ही लोग टेरराइज होते हैं. बट आगे देखते हैं ऑप्शंस. मीडिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग टेररिस्ट अटैक्स दैट कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गोइंग टू दैट एरिया. अच्छा, the awareness that media creates against terrorism is instrumental in preventing youth from joining terrorism. Countries that ban reporting of terrorism may attacks face as many terrorists as those don't. Hmm. ठीक है, तो इससे शुरुआत की देखो पैराग्राफ से द क्विकेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय टेररिज्म. तो अगर इसके मेन आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना है ना, तो मुझे लगता है कि हमें बैन टेररिज्म वाली बात होनी चाहिए. ठीक है, अगर कोई ये प्रूव कर दे कि भाई टेररिज्म जहाँ 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 रिपोर्टिंग बैन है ऐसे टेररिस्ट अटैक्स की, वहाँ वहाँ उतने टेररिस्ट अटैक्स होते हैं जितने जहाँ पे रिपोर्टिंग बैन नहीं है, तो फिर ऑथर का आर्ग्यूमेंट कम्प्लीटली गलत हो जाएगा. ठीक है, मेरे ख्याल से ये 6 नंबर का आरसी होगा. ये भी चार, अच्छा ये भी 4 क्वेश्चन का ही आरसी है. और अगला वाला भी क्या कहते हैं, क्या 4 का ही है. ओके, अच्छा ठीक है, लास्ट के 8 क्वेश्चंस बेसिकली इन्होंने वीए के दे रखे हैं, बाकी सब कुछ आरसी है. चलो एक बार थर्ड पैसेज देखते हैं. मुझे लगता है कि पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट तो शायद नहीं हो पाए, क्योंकि बीच बीच में मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर होता जा रहा है. बट एनीवे ये थर्ड पैसेज एक बार देखते हैं. uh, Discussions over misinformation, disinformation, and fake news have reignited interest in the news literacy. While the range of different actors, from educators to technology companies, believe that raising news literacy would make people better able to separate facts from fiction, potentially limiting the spread of false information and leaving them better equipped to navigate partisan media. Others, however, have struck a note of caution by arguing that we need to think carefully about what news literacy should look like in past news when teaching people to be skeptical or giving them ways of questioning to how useful are such skills in the world where many believe that trust, including the news, is already dangerously low. हम्म. ठीक है, मतलब बहुत लोग क्या कहते हैं ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई न्यूज़ फेक है, न्यूज़ फेक है, तो अब क्या कहते हैं, और न्यूज़ में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लो है तो और लो होता जा रहा है. और क्या कहते हैं न्यूज़ लिटरेसी की क्या हमें ज़रूरत है, आई थिंक. ठीक है, लो क्वालिटी न्यूज़, मतलब एक स्टेटमेंट है ये पूरा. ठीक है, अच्छा कि ऑथर का बिलीव क्या है. Which of the following is a person with higher news literacy is a person with higher news literacy likely to read. ठीक है, the answer lies in considering the relation. मतलब इसमें चारों क्वेश्चन ऐसे हैं यार कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही होगा, क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद ही आंसर हो पाएंगे. चलो ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ, अगर आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ के ना फिर बाकी दोनों क्वेश्चंस देख ले रहा हूँ एक एक बार, जिससे कि बाकी मतलब चारों क्वेश्चंस देख ले रहा हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी भाई क्या पूछा गया है, तो उस हिसाब से मैं फिर आगे का प्लान बना लूँ. चलो ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में तो न्यूज़ वगैरह के बारे में बात हो रही है.
The answer lies in considering relation between trust and news literacy. Many people hope that increasing overall levels of news literacy will reverse the decline in news trust. See, many countries, people will have better journalism. This sounds like a reasonable, but news literacy may also go hand in hand with a degree of skepticism. Even if you focus on news production, the more people know about news, the more knowledge they have limitation है why in news literacy. ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ उसने ये बताया कि भाई न्यूज लिटरेसी बढ़ाने से भी बहुत ही स्मॉल लेवल ऑफ इंक्रीज हो रहा है ट्रस्ट में. We must also consider the possibility that those with higher levels may rely less on social media, yet they appear to be more discerning when they use it. When deciding whether to click through a story, they are more likely to do a range of different credibility cues compared to those with lower. So they are more likely to say that the news and the headline and the person who shared the story are more important in deciding whether it will be worth their time. The exception is number one, which is the least important queue across all those, but is more important among those. अच्छा ठीक है, तो इसमें बताया एक क्वेश्चन तो था कि लो क्वालिटी न्यूज. ठीक है, विच ऑफ द पर्सन विद हायर न्यूज लिटरेसी लीस्ट लाइक टू फेसबुक पोस्ट. ये तो कहा है इसने कि भाई द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज विच इज लीस्ट इम्पोर्टेंट क्यू अक्रॉस बट इज मोर. ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है देखो. पोस्ट ऑन रिसेंट शेयर्ड बाय ट्रस्टेड फ्रेंड. देखो ट्रस्टेड एग्जाम आ गया तो न्यूज हायर न्यूज लिटरेसी. ठीक है, रिलायबल. A leading magazine news, a leading magazine at a newspaper stand with a sensational cover story. वो न्यूज़पेपर स्टैंड इज स्टिल, मतलब अगर मैं खुद को एक लिटरेट न्यूज़ लिटरेट आदमी समझूं तो न्यूज़पेपर मैगजीन एट न्यूज़पेपर स्टैंड बट मोर क्रेडिबिलिटी देन अ फेसबुक पोस्ट, तो मैं उसका तो यही मार्क करूंगा. नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं. Exception to this no. So, however, they are also less likely to share or comment on news content. So, the simple idea that low quality news is managed to be, this may only be partly true. The use of social media for news has also been extremely more diverse than increasing political participation, the modest depolarization of politics. Also, such institutions should become more important to news system. In yet from today's news system should aim to improve the knowledge of both the positive and negative. Only more comments is relatively amount for people. ठीक है, तो इससे तो ऑथर अग्री करता है, तो ये तो अब हम दोबारा पढ़ेंगे ही नहीं. देयर इज अ पॉजिटिव correlation between levels of news literacy. This author can disagree with, but चलो next देखते हैं. The tendency में read news, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने लिखा हुआ है यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर न्यूज विद मोर डाइवर्स साइट्स. However, they are also less likely to share or comment on the news themselves. ठीक है. अच्छा, इससे तो शायद ऑथर अग्री कर जाए. News literacy campaigns should aim to increase skepticism of stories on show, but not on mass media. Hmm. ये क्या कहते हैं मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद. अब यार इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा. अगर बात करें यार बी ऑप्शन, मुझे लग रहा है पहले तो कि बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा क्योंकि ए से तो ऑथर अग्री करता है. ठीक, देन हायर न्यूज लिटरेसी एंड शेयरिंग न्यूज. ठीक है, और बी से देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन लेवल्स ऑफ न्यूज लिटरेसी एंड ट्रस्ट इन न्यूज. मतलब जैसे जैसे न्यूज लिटरेसी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रस्ट इन न्यूज भी बढ़ता जाता है, बट ऑथर ने तो कहा है कि क्या कहते हैं ये. मतलब आप सेकेंड पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसने कहा है कि दिस साउंड्स लाइक अ रीजनेबल अजम्पशन. ठीक है, कि पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बट न्यूज लिटरेसी में also go hand in hand with a high degree of skepticism. ठीक है, तो author is very likely that he would disagree with this particular thing. However, I might be wrong. तो let's see कि क्या होता है. क्या कहता है according to the passage there is a very small number of increase in trust levels as news literacy increases. So, increase in transparency lays bare the imperfections and why is this, अच्छा ठीक है. This may be why we see only a very small. ठीक है,
द मोर द, अच्छा ठीक है, ठीक है, read all the news, न्यूज, ठीक है। तो उसने कहा कि वेरी स्मॉल इंक्रीज, अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखा जाता तो मैं ए मार्क कर देता या कुछ और मार्क करता, बट मुझे लग रहा है कि इसके लिए सी सबसे सही है, क्योंकि मतलब ये सेकंड पैसिव पैराग्राफ से ही है यार क्वेश्चन। तो अगर इवन इफ वी फोकस ऑन न्यूज प्रोडक्शन, द मोर पीपल नो अबाउट हाउ न्यूज इज मेड, मोर knowledgeable they will be about its limitations and imperfections। तो ये क्या कहते हैं, सेम पैराग्राफ से ही है। तो मैं इसका आंसर तो सी मार्क कर दूंगा, ठीक है, विद सम डाउट। लो क्वालिटी न्यूज इज प्राइमरली spread by people with low news literacy, what can be said, the author believes this statement is false, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है कि the exception to this rule is the number of comments, likes or shares which is least likely, least important cues across all, but is more important among those the lowest levels of news, मतलब lowest levels of news literacy वाले लोग क्या कहते हैं, ये जो न्यूज है वो देखते जरूर है, however they are also less likely to share or comment on news themselves, ठीक है। मतलब शेयर करने में और कमेंट करने में जिससे कि उसकी रीच बढ़ेगी, तो यानी कि लो इज प्राइमली, ये assumption false, और सो द simple idea of local may only be partly true, but he does not say that this is false, he says that this may only be partly true, मतलब अपने स्टेटमेंट को भी वो डाउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ही सी मार्क करूंगा, हालांकि डी ऑप्शन भी वैसे काफी खराब है, कैट में ये मिलेगा नहीं आपको ऐसा ऑप्शन की, ठीक है। तो मैं इसमें तो सी मार्क कर दूंगा कि ऑथर कुछ भी क्या कहते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यार अगेन हम नया पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक 13 14 15 16 ये चार क्वेश्चन हैं इस पैसेज में। और लाइक अगेन मैं सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा यार, पहले एक या दो पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद एक बार क्वेश्चंस देखूंगा कि भाई कोई क्वेश्चन फंसा या फिर आगे कौन से पैराग्राफ में क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में द फर्स्ट पैराग्राफ, those who speak out against bad treatment are often dismissed as playing victim, accused of dwelling on imagined slights or indulging in an exaggerated sense of grievance. In the face of ridicule or worse, the threat of violence, it would be easier to keep quiet, and yet victims of injustice often do speak up. Far from any desirable, they are often morally motivated and act for from only a sense. ठीक है, तो ये तो आप देख ही चुके होंगे, मतलब क्या कहते हैं, ये तो कहते ही हैं अगर कोई रो रहा है तो उसको बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, यू आर प्लेइंग द विक्टिम, समथिंग लाइक दैट। बट ऑथर ने कहा है कि ज्यादातर टाइम विक्टिम्स जो है वो बोल देते हैं, और चलो ठीक है, मैं अभी अपने कोई assumptions नहीं बनाऊंगा, although I have a very strong point of view on this topic, but I will not think about anything that I know. I make my opinions on what I read now. So someone who is subjected to demeaning treatment might owe it to herself to protest. अच्छा यहाँ पे herself भी लिखा हुआ है, देखो ये अच्छी चीज है। Might owe it to herself to protest and to undermine the apparatus of assumptions, stereotypes and norms that enable this, but importantly she might also owe it to others who are vulnerable to similar, to resist the injustice, ठीक है। This is of what US persons Marian Young and Rosenstein called structural industry, which are perpetuated through seemingly benign everyday practices background. Even where there is no instance, in fact, since such is publicly, repeatedly, and honestly disavowed, operational on the basis of example, class 6 prevails. ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन तो लास्ट पैसेज के बारे में, पता नहीं कौन ऐसे ऑर्डर रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चरल इनजस्टिस, तो स्ट्रक्चरल इनजस्टिस के बारे में तो अभी हमने, मुझे लगता है कि कहीं कहीं तो पढ़ा है, ठीक है। बट स्ट्रक्चरल इनजस्टिस के बारे में आगे भी बात हुई है, तो हम सेकंड क्वेश्चन, मतलब अगर कोई क्वेश्चन फंसा नहीं आगे तो मैरियन यंग ने देखो स्ट्रक्चरल, देखो ये तो इनकरेक्ट है, सोशल स्ट्रक्चरल समटाइम्स विक्टिम्स में themselves be नहीं, there's not by standards and victims in case in a number of ways. Ambivalence is the characteristic that binds all of them.
Although structural injustice is manifested in a number of ways, ambivalence is a characteristic. ठीक है, चलो ये बाद में देखते हैं, मतलब 14 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, ये लास्ट में देखेंगे यार। 16 refer to as playing the victim। अच्छा, ये तो यार पहली पैराग्राफ में था। Who are referred to as victims who speak out about often motivated by a need of attention। ये तो गलत है। हाँ मतलब क्या कहते हैं, ये तो एक मिसकंसेप्शन है। ऑथर ने क्लियरली बोला है कि भाई far from any desire of glory, they are often morally motivated from a sense of duty, driven by ulterior। ठीक है यार, ये तो ऑथर ने कहीं नहीं कहा है, while that might I believe to be correct। Victims who speak out about injustice done to them have a strong will to protect others from experiencing the same। मतलब strong will तो क्या ही क्या कहते हैं, इसने लिखा है कि they owe it to others to protect others। और फिर से कहते हैं परसीव कीपिंग क्वाइट एज द इजियर ऑप्शंस। नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि उसने कहा है ठीक है, परसीव कीप एज द इजियर ऑप्शन। हाँ मतलब इज अ मिसकंसेप्शन। यानी कि ए या बी में से ही कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि यही दोनों मिसकंसेप्शंस हैं। who speak out about injustice done to them are driven by ulterior motive। मतलब इसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं हुई है। ठीक है, और नीड फॉर अटेंशन के बारे में बात हुई है, तो मैं ए ही मार्क करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। चलो ठीक है, आगे नहीं, मतलब पूरा पैसेज अभी तो पढ़ना है। ठीक है, तो दो पैराग्राफ मैंने पढ़ लिए थे, अभी दो पैराग्राफ और बाकी हैं, और 3 क्वेश्चन बाकी हैं इस पैराग्राफ में। 7 8 मिनट बाकी हैं अभी मेरे पास, तो लेट्स सी कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। So, such structural injustice is manifested in a number of ways, from lower life expectancies and prevalence of sexual and intimate partner violence to the perception of diminished competence in the workplace and casual condescension in workplace is typically characterized by ambiguity. Ambiguity is often clear whether a particular interaction is act. Uh, it was, ठीक है, ये तो नहीं बोला है कि मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ये बोला है कि अनक्लियर है कि डिफरेंस कैसे हम बता करें। तो the victims can be complicit in their own such that the victims can be complicit in their own। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखा है कि द इंसिडियसनेस ऑफ स्ट्रक्चरल इनजस्टिस रेस्ट ऑन दिस एम्बिग्विटी। ठीक है, तो यार इसका आंसर तो डी या सी में से कुछ भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, कि देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, क्या सॉरी, बी या डी में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, सोर्सेस तो पता ही है हमें कि सोर्स क्या है, और समटाइम्स विक्टिम माइट बी, क्योंकि ये क्लियरली लिखा हुआ है देखो। ठीक है, सच दैट, ठीक है, गिवन दैट सो मेनी मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस ड्रिवन बाय सोशल नॉर्म्स एज मच एज बाय इंडिविजुअल्स, सच दैट विक्टिम्स कैन बी कॉम्प्लिसिट इन देयर ओन ऑपरेशन। समटाइम्स विक्टिम में फिर, ये तो मैं मार दूं कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, as a particular neuron might genuinely discover the values and to by chance and notably the insult is unseen and suppressed by those. In such cases, victims are epistemically privileged. They are aware that some set of seemingly benign norms or behaviors are in fact wrong. They are aware that these norms might be harmful and be harming them. They might be aware of something and before they are in a position to seek in such cases, they will have a primary review. Next, review to the class of victims actually.
personally, but fallible individuals aiming to do right, victims potentially play a crucial role in helping them realize that aim for fellow victims. They are collaborators in curing unjust practices and illicit institutions. ठीक है, लास्ट में तो मैं जोन आउट हो गया यार, मतलब, बट मैं आप पैसेज दोबारा नहीं पढ़ूंगा। चलो 13th क्वेश्चन एक बार देखते हैं, लास्ट पैसेज ऑफ द पैराग्राफ, लास्ट पैसेज ही तो नहीं पढ़े। क्या victims are epistemically because they are at the receiving end of unjust treatment, are privy to unseen and unheard insults। ठीक है, लास्ट पैरा पैसेज में बेसिकली मेरे ख्याल से ये बात की है कि क्या कहते हैं, अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, मतलब आप विक्टिम हो, आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, और क्या कहते हैं, बस आप ही को पता है वो, और किसी को नहीं पता। ठीक है, विक्टिम्स आर एपिस्टेमिकली प्रिविलेज्ड। ठीक है, एपिस्टेमिकली वर्ड का मतलब तो मुझे नहीं पता, बट एपिस्टेमिकली वर्ड यहाँ पे भी कहीं तो यूज हुआ था। ठीक है, क्या कहते हैं, खैर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। विक्टिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम and it is their duty to stand and act sternly against their perpetrators। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा है epistemically privileged। ठीक है, अ, ये बस एक लाइन है। ठीक है, बट ये मुझे लगता है टू बाई स्टैंडर्ड्स perpetrators are unaware of their wrongdoing। ठीक है, टू बाई स्टैंडर्ड्स नथिंग नोटेबल हैज टेकन प्लेस। तो ये मतलब मुझे लगता है एक ओवर आर्चिंग थीम है। ठीक है, कि भाई विक्टिम्स को पता है फॉर फेलो विक्टिम, और ये उनकी ड्यूटी है कि वो बोलें। ठीक है, विक्टिम सीकिंग अ रेमेडी टू द ऑपरेशन them are not surprised that they are serving the whole society। हाँ मतलब ये सही है, बट दिस इज व्हाट इट सजेस्ट फॉर वेल मीनिंग बट फॉलेबल इंडिविजुअल्स aiming to do right for well me unlike self regarding duties this duty is। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ देखो यार, ये तीनों ही चीजें लिखी हुई हैं लास्ट पैसेज में। तो जनरली आपको ऐसा, मतलब ये आई वुड से दिस अ वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ मॉक दैट आई अटेम्प्टेड, बट ऐसा क्वेश्चन जनरली मिलता नहीं है। बट एनीवे आई वुड मार्क सी, क्योंकि आई वुड नॉट चेंज माई आंसर, आई डू नॉट लाइक टू चेंज माई आंसर। चलो ठीक है, 15 क्वेश्चन है, which of the following can we it is speak out against them? हाँ ठीक है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मेजर टू rectify structural injustices are often obscure। हाँ मतलब ये भी कह ही सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो है ही, यानी कि देखते हैं थर्ड है कि नहीं है। देखो एक्चुअली मैं ना कि द मेजर्स टू रेक्टिफाई सोशल इनजस्टिसेस, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ऑब्सक्योर तो है, मतलब ये इन पैसेज से भी इन्फर किया जा सकता है और खुद की नॉलेज से भी। ठीक है, अक्यूजिंग पीपल ऑफ dwelling on imagination is used to deter people। क्या कहते हैं, आई थिंक अगेन मतलब सेकेंड और थर्ड पॉइंट के बारे में, मतलब पैसेज में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्या, कोई भी बात नहीं हुई है, मतलब कैसे रेक्टिफाई होता है ये, इसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। ऑब्सक्योर है क्या है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, और अक्यूजिंग पीपल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्यूजिंग पीपल ऑफ ये है, बट क्यों करते हैं ये भी नहीं बोला गया है। तो चलो मैं इसको अब सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और सिर्फ 29 सेकेंड बचे हैं। ठीक है, तो आ, चलो ठीक है यार, लाइक दिस इज हाउ द मॉक एंड्स हियर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, let me know यार in the comment section, like if you have any doubts or such, um, क्या कहते हैं, also like if you have any doubts in the like strategy part of this। ठीक है, तो I'll
quickly talk about like my VRC experience. तो यार मेरा VRC का like फर्स्ट अटेम्प्ट बैक इन 2016, स्कोर अच्छा, लेट मी सी यार स्कोर कितना आया है, स्टार्ट, ठीक है तो आई गॉट 12 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, which made my score around 34 आई थिंक, हाँ 34 स्कोर है, 33 है सॉरी, एक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया है अच्छा अपेरेंटली। ओके तो माय स्कोर इज 33 हियर एंड माय परसेंटाइल इन फॉर दिस मॉन्क इज अपेरेंटली 97। तो यार like I think this was one of my better attempts. I generally don't do VRC very good, and before like checking the score, I was talking about कि यार क्या कहते हैं यार I can't show the screen actually क्योंकि the screen is actually of a private sort of a coaching, so I can't show that screen where they talk about the result. But like talking about my personal like cat attempts, in the first attempt I was able to attempt the entire paper. I just read the passage, went to the questions, didn't think twice about any of the questions, attempted everything in one go. Got a really good percentile, and that I think is again a very common and a very good method of attempting the questions. Like, don't think a lot. Whatever comes first in your mind, just mark it. Right. If you think a lot, if you stress about or a lot on any particular question, right? If you overthink any particular question, you are very likely to get that question wrong. ठीक है तो रिमेम्बर दिस थिंग कि यार ट्राई टू लाइक मेक श्योर कि आप ज्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, मतलब और जनरली आपने देखा होगा कि यार मैंने ज्यादा क्वेश्चन मतलब अपने फर्स्ट चॉइस से ही मैं गया, तो आई डोंट नो कि वो सही है कि नहीं, बट ओवरऑल एक लॉन्ग रन में दिस वुड इम्पैक्ट यू अलॉट। क्या कहते हैं what I would suggest for you to do in the mock is कि एक पैराग्राफ पढ़ लो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो फिर सॉल्व कर दो, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पैराग्राफ में आएगा। और एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस का भी थोड़ा थोड़ा मतलब पैराग्राफ पैसेज का थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है कि यार सोचने के बारे में कि मतलब पैसेज कैसा आया है और सो ऑन। दैट इज अ स्ट्रेटजी आई यूज इन मॉक टुडे। लेट मी नो अगर आपको लाइक वीए के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो I and Rahul would be here making such videos. Do let us know अगर तुम लोग को पसंद आया, and yeah, hope to see you soon. Thank you. So, uh, should we focus more on RC or VA? I would say you should focus more on RC, but like save at least say 6-7 minutes. मतलब अगर इस एग्जाम को मैं थोड़ा तेज देता तो 6-7 मिनट बचा लेता शायद वीए के लिए, तो माई ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी वुड बी कि 32 मिनट्स में बेसिकली आप चार क्या कहते हैं पैसेज अटेम्प्ट कर लो, और फिर उसके बाद 7-8 मिनट जो आपके पास बचे हैं उसमें क्या कहते हैं आप मतलब वीए का सेक्शन कंप्लीट कर लो। वीए के सेक्शन में यार जनरली फॉर पर्सनली क्या कहते हैं आई फेल्ट की एक्यूरेसी काफी लो हो जाती है स्पेशली इन टीटा क्वेश्चंस। ठीक है तो टेक मतलब डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वीए क्वेश्चंस। ठीक है तो Saurabh Mohri, hello Pulkit sir, is 2 RCs and VA sufficient for 95%? देखो यार अगर तुम्हारी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, अब देखो इस पेपर में वीए में 8 क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में 6 क्वेश्चन है वीए के। ठीक है मान लो 8 क्वेश्चन भी आते हैं यार तुम्हारे एग्जाम में वीए के, तो 8 क्वेश्चन और 8 यानी कि 16 क्वेश्चन अगर तुम करोगे तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर 95 परसेंटाइल। ठीक है तो क्या कहते हैं
मेक श्योर कि यार इफ यू आर अटेम्प्टिंग ओनली 16 क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने इस मॉक में 16 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए, ठीक है। आई वुड हैव गॉटन अबव, लाइक इन रियल कैट ऑल्सो आई वुड हैव गॉटन 97 98 परसेंटाइल, ठीक है। और तुम भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, बेसिकली 10 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मतलब कर सकते हो ऐसे। सर वी शुड बिगिन विद वीए और आरसी। यार ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब तुम पेपर एक्चुअली में स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा, और तुमने शायद मतलब मॉक को एक बार फिर से देखना, मतलब जो पहला पैसेज मैंने सॉल्व किया है ना, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे हैं। बाकी सारे पैसेज में थोड़ा 7 8 मिनट, 7 8 मिनट, थोड़ा 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 टाइम कम लगा है एक्चुअली में। आई एम सॉरी। बट तो क्या होता है कि शुरुआत में थोड़ा इनर्शिया होता है रीडिंग के लिए, और आप ऑब्जर्व नहीं करोगे बट आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं जनरली इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ये क्या करता था, ठीक है, प्रेफरेबली मतलब समरी वाले, या ऐसे जो इजीली सही होते हो मेरे, ठीक है। मैं कठिन क्वेश्चन नहीं करता था कि मैं सबसे पहले पैरा जंबल करने लगा, ठीक है। तो पैरा जंबल तो कई बार होता नहीं था। अ, क्या कहते हैं, तो माय एडवाइस इज कि डू 2 क्वेश्चंस ऑफ वीए एंड देन मूव इनटू आरसीज। 8 मिनट में वीए कैसे कंप्लीट करें? देखो 8 मिनट में वीए नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है, बट 8 मिनट में योर ऑब्जेक्टिव इज टू सी ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार तुमने सारे क्वेश्चन देख लिए, तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हें वीए करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई मैं रादर 8 मिनट की जगह 12 मिनट 15 मिनट दे के वीए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, और तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि भाई वीए के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एटलीस्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो 5 सही हो जाएंगे, तो गो फॉर इट, ठीक है। बट मैं 8 मिनट, ये देखो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है, कि मैं 8 मिनट बचाता हूँ से वीए के लिए, क्योंकि मैं मेरी एक्यूरेसी वीए में जनरली बहुत कम है, ठीक है। तो मैं उस चीज के लिए ज्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं करता हूँ। मैं आरसीज पे मेन फोकस करता हूँ यार, कि मैं सारे आरसीज अटेम्प्ट कर लूँ, आरसीज में 80% एक्यूरेसी बना लूँ, और फिर 4 5 क्वेश्चन वीए के, मतलब जो वीए में हो गया वो तो बोनस मान लो, मतलब बेसिकली, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट टू गेट 99 परसेंटाइल? ठीक है, मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पेपर में। अगर 16 के 16 आप अटेम्प्ट कर दोगे पेपर में, तो यू विल गेट अ 99 परसेंटाइल, ठीक है। अगर 16 के 16 अटेम्प्ट करके सही कर दोगे, ठीक है, तो इजिली यू विल गेट अ 99 परसेंटाइल, ठीक है। बट फंडा ये है यार कि तुम कितने क्वेश्चन सही करते हो उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आई वुड से कि ट्राई टू अटेम्प्ट अराउंड 20 22 क्वेश्चन, ठीक है, 20 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, अगर 99 परसेंटाइल चाहिए, क्योंकि 4 5 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे। शुड आई ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर टफ आरसी? यार फ्लो चार्ट पहले मैं भी ड्रॉ करता था एक्चुअली में। इनफैक्ट मैं पहले क्या करता था कि हर आरसी के साइड में, हर पैराग्राफ के साइड में ना एक एक नोट बना लेता था कि भाई क्या कहते हैं, पहला पैराग्राफ में एक वर्ड में मैंने कुछ सोच लिया कि ये लिखना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वैसे मैं करता था, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आई डोंट थिंक यू शुड क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर टफ आरसी। इफ देर इज अ टफ आरसी, क्विकली गो टू द क्वेश्चंस, देख लो यार कि कोई क्वेश्चन ऐसे पॉइंटेड बेस्ड है कि नहीं है, कि या फिर सारे क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड ही हैं। अगर सारे क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड हैं तो सारे क्वेश्चन छोड़ के तुम वीए में मर जाओ, ये मेरी एडवाइस होगी, ठीक है। और उसको फॉलो करना ना करना ये डिसीजन तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में लेना पड़ेगा, ठीक है। Hi Pulkit sir, your junior from RJVT planning to give CAT. How are you doing? Your videos are very helpful. So Abhishek Pandey, I'm doing really good, yaar, and I'm glad you like my videos. How to increase mock score? काफी जनरल स्टेटमेंट है, इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे हम यार कि हाउ टू इंक्रीज मॉक स्कोर। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग वीआरसी इन 40 मिनट्स? यार देखो सिंपल सी बात है, मैं अटेम्प्ट लाइक ट्राई करूंगा कि यार 30 32 मिनट में बेसिकली पूरा मेरा आरसी का पोर्शन हो जाए। बाकी 8 10 मिनट जो बचे हैं, मैं 1 मिनट पर क्वेश्चन फॉर वी है बेसिकली, ठीक है, वो बचाने की कोशिश करूंगा यार। अच्छा, सोमदीप्त्या अधिकारी ने पूछा कि सर ब्रिंग सम वीडियोस रिगार्डिंग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी फॉर डीआईएलआर, पर्टिकुलरली सेट सिलेक्शन स्ट्रेटजी, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। यार डीआईएलआर में मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया तो है, बट इफ यू वांट तो आई विल क्रिएट अ लाइव मॉक लाइक दिस। आई डोंट नो कि यार ये कितना हेल्पफुल है यार, क्या है, ठीक है, बट आई विल क्रिएट अ लाइव मॉक इफ लाइक यू आस्क फॉर दैट। Again, I've shared a video on strategy. If you want, go have a look.
तो सेट सिलेक्शन इज अ प्रॉब्लम यार एक्चुअली। मेरा डीएलआर में मैंने तीनों पेपर्स में लाइक जब भी कैट दिया, जब भी मॉक्स वगैरह दिया, तो अच्छा कर दिया, मतलब ठीक ठाक कर दिया बेसिकली, अच्छा तो नहीं। बट क्या कहते हैं, आई वॉज नेवर वेरी कॉन्फिडेंट इन डीआईएलआर। तो क्या कहते हैं, बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं तो सिंपल पहले तो ये देखता था कि यार नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं एक क्वेश्चन में, एक सेट में। और दूसरा देखता था कि यार पैसेज कितना बड़ा है, और मतलब अगर बहुत बड़ा पैसेज है तो आई वुड नॉट गो एंड रीड द एंटायर पैसेज बिफोर मेकिंग द डिसीजन किसको करना है कि नहीं। अगर पैसेज बहुत बड़ा है तो यार मैं उसको क्विकली मतलब थोड़ा बहुत रीड करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। मतलब 3-4 मिनट से ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करूंगा यार किसी क्वेश्चन पे, कि 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए, मतलब कि 5-6 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर दिए और फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, स्पेशली एट द स्टार्ट। ठीक है, डीएलआर में यार मेरे को लगता है कि यार स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको यार 24 क्वेश्चन करने हैं 40 मिनट में, तो एंड मतलब अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए यार आपको तीन ही, या अगर आपने चार कर दिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप तीन भी कर रहे हो ना तो भी आपका एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाएगा, तीन पैसेज आपने कर दिए तो। आई थिंक डेफिनेटली अबव 99 तो आ जाएगा, मतलब मुझे डिसेंट की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। बट एनीवे क्या कहते हैं, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यार सबसे पहले ना पूरा डीएलआर का पेपर देख लो एक बार। ठीक है, और जो सबसे छोटा क्वेश्चन हो ना उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। और ये बहुत ही यार ये बच्चों वाला तरीका है, बट एक क्वेश्चन जो सबसे छोटा होगा ना वो तो फंस ही जाएगा। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी रहती थी मेरी डीएलआर के लिए। अभी मॉक्स में एवरेज 75.75-80 आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट कैन एक्सपेक्ट इन रियल कैट इफ यू कैन गिव अ जनरल आइडिया। देखो यार 75-80 आ रहे हैं तो अराउंड 90 तो यू शुड स्कोर। ठीक है, बट थोड़ा सा अगर तुम पुश करोगे ना, अगर तुम क्या कहते हैं जहां पे हो वहां से 15 नंबर या 5 क्वेश्चन बेसिकली तुम और अगर एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो यू वुड बी इन एरिया जहां पे तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस होंगे। थोड़ा 90 के ऊपर मतलब आते हो तो फिर कॉलेज के ऑप्शंस काफी सारे होते हैं। 75-80 परसेंटाइल आ रहा है तो थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है, हो सकता है मॉक में तुम्हारे कम आ रहे हो, रियलिटी में ज्यादा आ जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, पेपर पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड होती है, डिपेंड करता है आपका दिन कैसा है, आप जो तुक्के मार रहे हो 50-50 मार रहे हो वो कितने सही हो रहे हैं। Yes, sir. Please make a strategy for DLR. Nitish Maheshwari, I've already made a strategy video for DLR. Please have a look. And if you want me to make a mock video as well, like mock video, let me know for the DLR section as well. I'm unable to increase my attempt in VRC. Just stuck on 10 questions. ठीक है यार, अब इसमें तो देखो यार तनवीर आलम, सिंपल सी बात ये है कि यार यू हैव टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस टू इंक्रीज। और तुमने पहले भी कमेंट किया था कि यार क्या कहता है, हाउ टू इंक्रीज मॉक स्कोर, बट टू इंक्रीज योर मॉक स्कोर यू हैव टू अटेम्प्ट मोर देन 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट। ठीक है, और कैसे करना है यार, आप अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाओ। डोंट, यू डोंट नीड टू बी 100% श्योर टू मार्क अ क्वेश्चन। ठीक है, इन मेनी क्वेश्चंस यार आई वाज नॉट 100% श्योर बट आई मार्क देम, क्योंकि इवन इफ इट इज अ 50-50% चांस यू आर स्टिल स्कोरिंग +1 +1.5 इन एवरी क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट करके देखना एक बार मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। want to score 30 percentile plus, I am stuck at 30-40, how can I improve? 30-40 मार्क्स है तो यार ठीक है, मतलब थोड़ा ट्राई करो। अब और क्या कहते हैं, मॉक्स वॉक्स 3-4 लगातार दो, जो सेक्शन कमजोर हो, मैथ्स में जो टॉपिक स्ट्रांग हो उन पे फोकस करो। क्या कहते हैं और अगर 30-40 परसेंटाइल है और तुम्हें 90 प्लस स्कोर करना है तो आ तो सकता ही है, बट नेक्स्ट ईयर कैट का पेपर भी भर देना। मतलब आ तो सकता ही है इस साल भी, बट नेक्स्ट ईयर का पेपर भी भर देना। 75-80 स्कोर, अच्छा अंकित आपका स्कोर है 75-80 यार। देखो 75-80 स्कोर पे तो काफी डिसेंट परसेंटाइल हो जाना चाहिए आई थिंक। अगर मॉक्स में इतना आ रहा है, अगर आप रियल गैट में भी इतना स्कोर कर दोगे तो आई थिंक 90 अराउंड आ जाना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल आई वुड से कि यार 10-12 मार्क्स थोड़ा और बढ़ो। और यार अभी तो कैट का पेपर आया भी नहीं है, तो अभी से मैं कैसे बता दूं कि भाई मतलब 75-80 मार्क्स पे कितने क्या कहते हैं क्या परसेंटाइल बनेगा। mock video for DLR would be very helpful. I would upload it like I'll try to upload it by Sunday जब भी मुझे टाइम मिलता है तो। How many questions should I attempt in DILR? तो आई वुड से कि दो दो सेट तो अटेम्प्ट करो, और तीसरा सेट भी हो जाए तो तीसरा सेट भी अटेम्प्ट करो। ठीक, दो कंप्लीट और एक हाफ, या फिर तीन कंप्लीट और थोड़ा सा हाफ और।
ठीक है. Score is ranging between 30 to 40 and I want 90 percentile plus. क्या कहते हैं. यार देखो, 30-40 स्कोर है तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो. आई थिंक 60-70 पे 90 परसेंटाइल शुरू हो जाता है, और ये जो अंकित का स्कोर है 75-80, इस पे आई थिंक डेफिनेटली तुम्हें 90 परसेंटाइल तो आ जाना चाहिए. ठीक है, मतलब हाईली लाइकली. ठीक है, तो क्या कहते हैं, व्हाट परसेंटाइल इज, व्हाट स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर अबव 99, ये तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा. Any predictions for CAT RC themes DILR set? My prediction for DILR set would be कि एटलीस्ट एक बार ग्राफ का क्वेश्चन आएगा जो सबसे आसान होगा, जो कि 2001 के पेपर में हुआ था तीनों सेट्स में. अच्छा, बाय द वे, क्या कहते हैं, कैट के तीनों स्लॉट्स में जो पेपर है वो रिपीट होता है बेसिकली एक तरह से. आप पिछली बार कैट 2021 का पेपर एक बार देखना तो आपको रियलाइज होगी ये चीज कि जो 2021 में क्वेश्चन आया ना, उसी टाइप का क्वेश्चन 2022 में भी है. जैसे तीनों पेपर में ना डीआईएलआर में बार ग्राफ का क्वेश्चन रिपीटेड है. ठीक है, तो क्या कहते हैं, पेपर एक बार, जिसका स्लॉट 1 है यार उसको तो कुछ नहीं पता चलेगा, बट जिनका स्लॉट 2 स्लॉट 3 है ना, उनको काफी सारे प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे कि उनके पेपर में मतलब वीआरसी की थीम क्या आ रही है, डीएलआर के सेट कौन से आ रहे हैं. ठीक है, उनको काफी सारी चीजें पता चलेगी. शुड आई फोकस ऑन सेक्शनल्स और कंप्लीट मॉक्स? देखो, स्लॉट 1 है यार, तो फिर क्या कहते हैं, तुम बाकी लोगों को प्रेडिक्शन देना, तुम्हें प्रेडिक्शन दे पाना मतलब अभी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. ये तो सिर्फ आई थिंक IIM अहमदाबाद पेपर बना रहा है तो वही दे पाएंगे. अ, नवीन, ओके, यू आर स्कोरिंग 10 मार्क्स इन वीआरसी. देखो यार, आई वुड से कि यार ज्यादा ओवर थिंक मत करो. अगर बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो यार आरसी को बहुत ही आराम से बढ़ो. मतलब आपके अगर 10 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप 20 मार्क्स लाने की कोशिश करो. 20 मार्क्स लाने के लिए बस आपको 8 क्वेश्चन अगर आप कर दोगे, ठीक है, तो ट्राई करो कि यार कंटिन्यूसली आपको, मतलब अगर आप 15 मिनट देकर एक आरसी भी कंप्लीट करते हो ना, तो दैट इज ऑल्सो नफ. तो एक बार मैं कहूंगा कि यार 10 नंबर आ रहे हैं तो एक बार चारों आर पेपर शुरू होने के बाद ना चारों आरसी एक बार फट से देख लेना. जो भी आरसी तुम्हें इजी लगे, जो छोटा लगे थोड़ा, जिसके क्वेश्चन आसान हो, मतलब एक बार थोड़ा जज करने की कोशिश करना और 3-4 मिनट में ना डिसाइड कर लेना कौन सा आरसी अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा ना, अगर तुमने एक आरसी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है. ठीक है, तो ट्राई करना कि अगर 20-30 मिनट में आपका दो आरसी हो जा रहे हैं 30 मिनट में. ओके, इंग्लिश. सो try to attempt like RCs completely in like 15 to 20 minutes. Even if you are taking 15 to 20 minutes, try to maintain a high accuracy on the RCs. Okay, that is what I want to say. Ki, also, like when you will do one RC in the CAT paper, you will realize ki yaar, the second is not that difficult. Okay. Also, try to sort out easier RCs. Okay. So there would be some RCs in which you would find language or the subject being discussed to be easier than other RCs. So try to do those RCs. RCs may in RCs the selection is important, not as important as DLR, but it is very important if you are not able to score like more than 10 marks. Uh, Slot 1. I'm very sad for you. Last two sets in DILR are difficult. How to get two more questions correct after two sets? अच्छा, तो अगर लास्ट टू सेट्स यार, अब लाइक दे विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, दे कांट मेक ऑल द सेट्स इजियर. ठीक है, तो आई डोंट नो कि यार इस बार आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि इस बार कितने नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे. ठीक है, बट अगर लास्ट ईयर का एग्जाम्पल फॉलो करें तो 20 क्वेश्चन आए थे 6-6-4-4 के. ठीक है, तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग लाइक 10 क्वेश्चन, ठीक है, 6 और 4 का आपने सेट कर लिया, तो आई वुड से कि यू आर इन द 99 परसेंटाइल रेंज, स्पेशली इफ यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. ठीक है, बट उसके बाद मतलब कैसे क्वेश्चन करना है, आई वुड से कि मतलब ये बहुत ही तुक्के वाली बात हो जाएगी यार. ठीक है, बट यू हैव टू फिगर आउट एंड योर लक हैज टू वर्क इन अ वे कि फाइंड द इजियर आरसी. ठीक है, क्रिएट केसेस फास्ट. ठीक है, और क्वेश्चंस देख लो. उसके बाद क्या कहते हैं, जब आपको पूरा पैसेज नहीं सॉल्व करना है ना, तो उसकी ये ट्रिक होती है कि आप क्वेश्चन देख लो और उसके बाद पैसेज पे जाओ. ठीक है. For good analysis of past year CAT, Hiba Khan, do the analysis yourself. Find a like answer sheet for the last year CAT. Attempt all the questions.
ठीक है, और आई कैनॉट रियली सजेस्ट अ सोर्स एज ऑफ नाउ. How many questions attempt in quant? Although I also got a good score in quant, but I think Rahul would be a much better teacher than me, especially considering quants. But I would say कि half questions in any area would be good. ठीक है. Any tips for slot one? Um not as such are, matlab, just go in with a fresh mind. That is the only advantage you will have over other candidates. ठीक है. मतलब पर्सनली स्लॉट वन में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा होगा. मतलब लाइकली है, श्योरिटी नहीं है. ठीक है. इट इज प्रोबेबल, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट लाइक 100%. ठीक है. Okay, guys. Thank you so much for listening so far, and thank you so much for watching. I'll see you soon, hopefully in a DLR mock. And thank you.